Good morning students, welcome back to the class 12 subject business study. As we have started our chapter number 4 planning as an revision part. In last video we have seen the meaning and then we have gone with the importance of planning and then features of the planning. Today we will see more two topics and after that the chapter is almost over. We are not going for the types of planning because it is not there in the part of syllabus. So in revision part, we will go with the limitations today. Limitation has 6 points and then we will carry forward the concept as in steps or procedures of planning. So let's begin with the limitations of planning. In limitations of planning, we are having 6 points. One is planning leads to rigid. Second point is planning may not work in dynamic environment. Point number 3 is planning reduce creativity. Point number 4 is planning involves huge cost. Point number 5, planning is time consuming. Point number 6, planning does not guarantee success. These all points are been important for understanding the planning's limitations. So let's begin with the point planning leads to results. Here I have a written short summarized concept. I'll read it and explain to you. So let's begin with the first point, planning leads to results. In an organization, a well-defined plan is drawn up with the specific goals to achieve within a specific time, but managers may not be in the position to change it as the business environment is dynamic. Manager needs to give some flexibility to cope up with the changing circumstances. As you know that market is uncertain and then you know that environment keeps changing and changing, so that business should be having a certain liberty or flexibility to make a change in a planning at a certain period of time. But in planning we cannot change drastically. Here it has been very much clearly said that planning is well defined concept where specific goals are being taken apart. As goals are being set, but the manager has not an authority to change it in future. As you know that future is uncertain, planning has been made today, but what changes will be happening in future we don't know. So planning requires certain flexibility so that the manager can change their concepts or change their policy to make up to that specific goal. So planning के अंदर पहले से ही हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट को लेके चल रहे हैं. उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होते रहता है. तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज होनी चाहिए और चेंजेस आप कर सको इजीली, ऐसा कुछ होना चाहिए. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. यस, ये प्लानिंग जो होता है वो प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है और साथ साथ में डायनामिक एनवायरनमेंट में हम लोग एडेप्शन नहीं कर सकते. तो प्लानिंग जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप डायनामिक सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाते. सो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है प्लानिंग कैन नॉट फोरसीन द फ्यूचर इवन इफेक्टिवली. तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम लोग आज नहीं जान सकते, वो फ्यूचर में ही होगा. और चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग अडेप्ट नहीं कर सकते अगर प्लानिंग की है तो. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. यस, क्योंकि प्लानिंग जो होती है ना वो हम लोग पहले बनाते हैं और प्लानिंग में जो टॉप लेवल मैनेजर जो है या मिडिल लेवल मैनेजर जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है. तो इससे क्या होता है कि लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं या फिर मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल के मैनेजर्स अगर उनके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं तो वो करंट प्लानिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते. और इससे क्या होता है कि मैनेजर्स के अंदर डिमोटिवेशन शुरू होता है और वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाते. फिर वो जितना चाहते हैं उतना वो कॉन्सेप्ट को आगे लेके नहीं जा सकते. पॉइंट नंबर 4 इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. यस, प्लानिंग के अंदर खर्चा भी बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो प्लानिंग रिक्वायर्स डिटेल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिकली कैलकुलेटेड एस्पेक्ट्स एंड द डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग.
तो प्लानिंग करने से पहले बाहर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है। R&D करने के लिए आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हो कि आप R&D करिए हमारे बिहाफ पे, और उनको वो पे करते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग से लेके एनालिसिस करने तक हम लोगों को खर्चा होता है प्लानिंग में, और वो प्लानिंग करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने प्लानिंग की है या जो सोर्सेज हमने कलेक्ट किए हैं वो रिलायबल है या नहीं। इससे हमें बेनिफिट्स मिल भी सकते हैं और बेनिफिट्स नहीं भी मिल सकते हैं। प्लानिंग इज़ एन टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट। यस, अगर आपको कोई एक टारगेट बनाना है या एक टारगेट के ऊपर वर्क ऑन करना है तो आपके पास एक तो ये बहुत ह्यूज कॉस्टली होता है, कॉस्टली होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो प्लानिंग इज अल्टीमेटली टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यस, क्योंकि मैंने अभी ही पॉइंट कहा था ह्यूज कॉस्ट के बाद में कि प्लानिंग की वजह से कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं मिलती कि या आपने जो टारगेट बनाया है या जो स्पेसिफिक गोल बनाया है वो अचीव ही हो जाएंगे। समटाइम्स इंफॉर्मेशन गेट्स रॉन्ग, और इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होने की वजह से जो आपकी प्लानिंग है वो भी रॉन्ग हो जाती है। समटाइम्स आपकी सिचुएशन सक्सेसफुली हो जाती है, कंप्लीट आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली। प्लानिंग की वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने जो प्लान किया है वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ एरर्स आपको मिलेंगे और वो एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है बाय कंट्रोलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाते हैं। तो ये कुछ प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, अभी 6 पॉइंट्स हमने कंटिन्यूसली देखे। तो पहला था प्लानिंग लीड्स टू रिजिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है डिसाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमने देखा प्लानिंग मे नॉट बी वर्किंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट, क्योंकि प्लानिंग हम लोग फोरकास्ट करते हैं और फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है। करंट सिचुएशन में हमारे पास एडेप्शन के लिए, प्लानिंग के अंदर चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फिर वापस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग को हम लोग करंट सिचुएशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मैनेजर्स की जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है। इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको चांस नहीं मिलता, और प्लानिंग जो होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है। प्लानिंग की वजह से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग की वजह से यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करने के बाद में वो जो आपने खर्चा किया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेनिफिट्स होगा ही होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज़, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि ये इसमें फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए मार्केट सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद में आपको मैंने कहा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यस, क्योंकि ये प्लानिंग जो होती है इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि हाँ आपने जो प्लानिंग की है वो परफेक्ट ही है और उस प्लानिंग के बेस पे आप आगे सक्सेस ही हो जाओगे। तो दिस काइंड ऑफ 6 पॉइंट्स वी हैव स्टडीड नाउ। अब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्लानिंग प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हम लोग नियर अबाउट 7 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर बाद में आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड फॉलोइंग अप द एक्शन। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग 1 by 1 समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको आपके टारगेट्स को सेट करना है, इसको कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एज एन टॉप लेवल मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर, you have to set the target for sales, for for launching a new product, for business expansion in new territories. Different areas you have to work on an objective. Your target has to be done in a planning concept. प्लानिंग के थ्रू ही आप आगे सक्सेस हो सकते हो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करनी है या कोई आपको टारगेट अचीव करना है तो आपको प्री डिटरमाइंड प्लानिंग करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे और उस टारगेट को बनाने के बाद में ये भी देखना है कि आपके एम्प्लॉय जो हैं उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली करें। तो यही है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस।
अब जब आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव कर लिया, आपने नए प्रोडक्ट बनाने की सोच ली, आपने फिर सेल टारगेट डिसाइड कर लिए, बिजनेस एक्सपेंशन का सोच लिया, तो सेकंड पॉइंट आपका आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस के अंदर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक तो अनसर्टन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम आज ये काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं प्रीमाइसेस के अंदर मटेरियल, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़, सब कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं। और तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे पास है जो लिखा हुआ है कि फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक यूजिंग फॉर द गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू डेवलप द प्रीमाइसेस। An organization use various forecasting such as policy change, new market demands of the product etc. for the various purpose। हम लोग यहाँ पे फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करने के बाद में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, मार्केट की डिमांड्स क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। इसी को कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। पॉइंट नंबर 3 है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। याद रखना कि एक प्लानिंग से कोई भी काम नहीं होता है। यू हैव टू मेक एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। अगर ऑप्शन ए बराबर वर्क नहीं कर रहा है तो बी पे जाओ, बी वर्क नहीं कर रहा है तो 3 पे जाओ, सी पे जाओ, सी वर्क नहीं कर रहा है तो डी पे जाओ। यू हैव टू मेक अल्टरनेटिव कोर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं। अगर एक में नहीं अचीव कर पा रहे तो दूसरे में अचीव करेंगे, दूसरा अचीव नहीं कर पा रहे तो तीसरे में अचीव करेंगे। तो ये रूटीन चलते ही रहता है और यहाँ पे इनोवेशन भी आगे बढ़ते ही रहता है। तो इनोवेशन आते रहेगा। मोर पीपल वर गेटिंग इंटरेस्टेड शेयरिंग देयर आइडियाज, आइडियोलॉजीज की वजह से नए नए कॉन्सेप्ट आते थे और आने के बाद में आप उसको चेक भी करते हो कि हाँ ये प्लानिंग अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये भी चेक करना होता है प्लानिंग में। पॉइंट नंबर 4 इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपने जो ऑप्शन लिया है उस ऑप्शन को आप रेगुलरली चेक करते रहो। या तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिला तो ओके, उससे और बेटर कैसे कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मिला तो वहाँ पे वापस ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए आप चेंजेस लेकर आओगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इन फाइनेंशियल डिसीजन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट। रिस्कर्स द इन्वेस्टर्स हायर द रिटर्न्स। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको मिलेगी। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन कितना आपको रिस्क लेना चाहिए वो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो और नुकसान हो गया तो सबको सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क इसको हम कहते हैं। टू इवेल्युएट सच प्रपोर्शन डिटेल कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग टैक्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड आर मेड टू दिस डिसीजन टू टेक। डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे इवेल्युएशन किए जाते हैं। कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितने शेयर आपके पास हैं तो उस शेयर से कितने बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, कितना मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये सब कुछ हम लोग सेट करते हैं प्लानिंग्स के थ्रू। सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, लेकिन हर प्लान एक ही टाइम पे नहीं यूज़ कर सकते। आप बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग को लेकर आते हो जिससे आपको बेनिफिट्स हो। बेनिफिट्स होने के बाद में आप उसको एग्जीक्यूट करो, या फिर हम लोग 2-3 अल्टरनेटिव प्लान्स को कंबाइन करके एक बेटर नया प्लानिंग बना सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके आगे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसलिए आपका 6 पॉइंट भी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग दी प्लानिंग दिया हुआ है। तो इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग का मतलब यह है कि आप जो प्लान बनाते हो या जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है या जो कॉन्सेप्ट बना है उस कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 ऑर्गेनाइजिंग के साथ में, असेंबलिंग के साथ में, प्लानिंग के साथ में आगे आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ पे बोला हुआ है if there is a planning to increase production, then more labor are required, more machineries are required. The steps are been involved in organizing more labor and purchasing machinery. तो अगर आपने प्लानिंग की है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो आपको मशीन्स भी लानी पड़ेगी। मशीन्स के साथ साथ में एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना पड़ेगा।
तो इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे पाओगे। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है फॉलो अप एक्शन। आपने जो प्लानिंग बनाया है वो प्लानिंग बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब उसको परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूसली वर्क ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करते रहना चाहिए। अगर आप चेक कर रहे हो तो ये फॉलो अप हो गया, इसको कहते हैं फॉलो अप। तो यहाँ पर हमने 7 स्टेप्स देखे, वो 7 स्टेप्स के अंदर हमने ये सीखा कि प्लानिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है अगर आपने पूरे 7 पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो किया हो तो। वो 7 पॉइंट्स है क्या, वापस से मैं आपको कहता हूँ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, developing premises, identifying alternative course of action, evaluating alternative course of action, selection of the best alternative, implementing the plans and following of action। ये 7 पॉइंट जो है वो प्लानिंग के लिए। टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर topic of planning as revision work over. So that's it for today. Thank you. I hope you will continue to learn. That's it for today. Thank you.